आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बदलापुर रेप केस के मुलजिम अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की होगी सीआईडी जांच, थाने पुलिस ने लिखा खत। मूडा मामले में कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया के रिट हाई कोर्ट से खारिज, ऊपरी अदालत में करेंगे चैलेंज। दिल्ली के साबिक वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के रानिया में निकाला जुलूस, कहा नहीं तोड़ा जा सकता हरियाणा वालों का हौसला। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अमरीकी दौरा मुकम्मल, फ़लस्तीन और यूक्रेन समेत कई ममालिक के रहनुमाओं से हुई मुलाकात। और चीन ने लबनान को दिलाया मदद का भरोसा, कहा हम अरब भाइयों के साथ इसराइली हमलों की मजम्मत की। बदलापुर रेप केस के मुलजिम के पुलिस एनकाउंटर की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मामले में सीआईडी की टीम पुलिस से मामले की तफसीलात लेने पहुंची तो पुलिस ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि थाने क्राइम ब्रांच ने 23 सितंबर को केस के मुलजिम अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया था। 17 अगस्त को पुलिस ने इस मामले में स्कूल के अटेंडेंट को गिरफ्तार किया था। इस पर किंडरगार्टन में पढ़ रही 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के जिनसी इस्तेसाल का इल्ज़ाम था। कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका लगा है। मैसूर शहरी तरक्यात अथॉरिटी MUDA मूडा मामले में उनके खिलाफ मुकदमे की इजाज़त के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत के हुक्म को चैलेंज करने वाली उनके रिट को हाई कोर्ट की बेंच ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सिद्धारमैया पर केस चलेगा। इस मामले में शिकायत कुनिंदा TJ अब्राहम ने फैसले की तारीफ की है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने सिद्धारमैया के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। वहीं कर्नाटक के वजीर रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि फैसले को डबल बेंच, दीगर बेंचों और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। In accordance with law, whatever was required to be taken care of, I think the order in brief what is told to us is a simple summary. And the summary to be expanded, we know what will be there. And I'm sure the judge has travelled quite far into various judgments throughout this country to come to this conclusion. It's a fantastic order and we were prepared for it. Sir, Justice clearly said that there are certain facts that need to be investigated. That is our argument also. Undisputable facts were there. So the writ petition challenging the order of approval passed by His Excellency the Honorable Governor of Karnataka has been dismissed, and the summary of the judgment would be that the facts envisaged in the complaint would undoubtedly warrant investigation, firstly, and secondly, the act of the complainant seeking approval from His Excellency the Honorable Governor of Karnataka is lawful, and there are absolutely no infirmities in connection to the same. Kind of facts and figures which Please. Yes. Yes. There was a finding which says the facts forthcoming in the complaint undoubtedly warrants investigation by an investigation authority. Okay, and it is also the finding that the Honorable Governor, His Excellency the Governor, has exercised abundant caution and has traversed through all relevant material before coming to the conclusion as to whether to grant sanction or not, and therefore sanction granted under section 17A is upheld by the Honorable High Court of Karnataka. seeking some time that they wanted that no action. See, they sought for extension of stay pending appeal period. Okay, they sought for extension of the stay order for about 2 weeks, which His Lordship has denied, and stating that the interim order which existed in the favor of the petitioner would also be dissolved. So as of now, there is absolutely no difficulty for the special court of legislators to proceed with the complaint in accordance with law. So what will be your next course of action? Like if you want to involve some agency to investigate the matter, which agency would you prefer?
See, as of now, it is the Lokayukta which would be, which would be brought into the picture before the special court, and thereafter we would think of whether to getting it referred to the CBI or any other investigation authority. If at all, if we feel that the investigation is not on the proper track, since Lokayukta being a state agency, we would approach the Honorable High Court of Karnataka seeking investigation by a special agency. And Rana sir, they are planning, as per information, Siddaramaiah is planning for petition in the division bench. What will be your preparation for that, if at all the challenges? You see, the judgment passed by the Honorable Single Judge, okay, it appears that it is exhaustive, and after it having duly considered numerous judgments of the various Honorable High Courts as well as the Honorable Apex Court, the judgment has been rendered. So that being the case, our preparation would be pretty much the same. See, appeal is the right of the petitioner, okay? That would be available to the Honorable Chief Minister. We cannot deny the right of appeal. But our preparation would pretty much be the same, since the authorities relied upon by us are appreciated and are duly observed in the judgment which is rendered, which probably would be available in a couple of hours. नहीं, झटका के अलावा और क्या हो सकता है? झटका नहीं है ये तो, इट इज ए स्लैप ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड मिस्टर सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया जो कुछ भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, लीगल और मॉरल, सबको हाईकोर्ट ने उत्तर दे दिया है। सिद्धरामैया तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सिद्धरामैया के खिलाफ जो कुछ भी सैंक्शन दिया गया है तो निष्पक्षपात इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके लिए सिद्धरामैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर, गवर्नर के रोल को लेकर के कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गवर्नर के माध्यम से बीजेपी टॉपल करना चाह रही है। सर नहीं ना, हम तो टॉपल करना ही नहीं चाहते। आप तो किसी को नेता को चुन लो ना, हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को और सारे प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी सरकार का टॉपल करने के कोई इच्छा नहीं है। 5 वर्ष आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आप ठीक तरह से सरकार चलाओ, भ्रष्टाचार में मत पड़ो। इस बीच कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने कहा है कि वज़ीर आला के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो किसी घोटाले में शामिल नहीं है, ये बीजेपी की एक सियासी साजिश है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने मूडा मामले को महज दिखावा बताया है। प्रेस को जारी किए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस का मकसद सरकार की उन स्कीमों को रोकना है जो गरीबों और दबे कुचले लोगों के हक में हैं। उन्होंने कहा कि उनसे इस्तीफा मांगने वाले लोग वही हैं जिन्होंने गरीबों और दलितों के लिए उनके सरकार के जरिए लागू की गई स्कीमों की मुखालफत की थी। How will you fight it out, sir? See, there is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. We stand by him. We support him. He is doing a good work for the country, for the party, and for the state. वक्फ बोर्ड को लेकर एक तरफ जहां मरकजी सरकार नए कानून को लाने की कोशिश कर रही है, वहीं अपोजिशन पार्टियां इसके खिलाफ हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के लीडर और हिमाचल प्रदेश के तामीरात आमा के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि वक्फ के साथ हर कानून में तब्दीली लाना जरूरी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड को तहलील करने का मुतालबा किया जा रहा है। गुज़श्ता शनिचर को सिरमौर ज़िले के शिला इलाके में वक्फ बोर्ड को तहलील करने की मांग में मुजाहरा भी हुआ था। नहीं, मैंने ये कहा है कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी संस्थान हैं, उनके अंदर समय के ऊपर रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है उसको ठीक करना हम सब का दायित्व है और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि सब चीज़ें कानून के दायरे में रहकर ही होगी, मगर प्रदेश के लोगों की जो एक कहीं ना कहीं प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उसके लिए पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना हर संगठन के अंदर, हर बॉडी के अंदर, हर रिलीजियस बॉडी के अंदर बहुत आवश्यक होता है। हमने इस दृष्टि से कहा है कि एक रिफॉर्म्स लाकर पारदर्शिता आनी चाहिए ताकि लोगों को हर चीज़ की जानकारी हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसकी जानकारी हो, ज़मीन के रिकॉर्ड्स हो उसकी जानकारी हो, ताकि प्रदेश के अंदर जो कुछ माहौल ख़राब करने का कुछ
प्रयास किया जा रहा है उसको ठीक किया जाए और सब लोग आपस में प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और एक भाईचारे के साथ प्रदेश के अंदर रहे, इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो महामानव की डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी मुल्क भर में मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन कर रही है, बिजली के नाम पर भी लूट की जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली देती है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लोगों की जेब काटती है। उन्होंने कहा कि इस साल मार्च में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक लगने से पहले 6600 मेगावाट की बिजली सप्लाई करने का टेंडर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिजली के टेंडर में मुसाबिकत बढ़ाइए ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। तो महामानव की डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में। तो महामानव ने कहा कोई कंपटीशन न रहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो होने दो, किनारे मारो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बोले 5000 मेगावाट सोलर बिजली चाहिए और 1600 मेगावाट थर्मल बिजली चाहिए। टेंडर निकल गया। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई इस देश में कौन दे सकता है? आप लोगों के मन में तो नाम चलना शुरू हो गया होगा। इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई महामानव के दोस्त के अलावा तो कोई दे नहीं सकता। 2-3 प्लेयर हैं इस देश में जो इसके लिए टेंडर करेंगे। टेंडर कर दिया गया, टेंडर कर दिया गया, टेंडर अप्लाई हो गया, टेंडर खुल गया। और जब टेंडर खुल गया सितंबर के महीने में अभी जब टेंडर खुल गया तो टेंडर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त, उनके मालिक, उनके आका अडानी को मिल गया। अडानी को मिल गया। पूरे देश में सोलर बिजली 2.5 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है। कोयले की बिजली 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है। लेकिन अडानी को 6600 मेगावाट की बिजली 4 रुपए यूनिट की दर से मिली। यह 1 रुपए की डकैती किसके जेब में डाली जा रही है? यह 1 रुपए की लूट किससे की जा रही है? महाराष्ट्र की जनता से। महाराष्ट्र के लोगों ध्यान से सुनिएगा, हिसाब लीजिएगा एक एक चीज का। यह 1 रुपए प्रति यूनिट की लूट आपकी जेब से की जा रही है। अडानी अपने पास से नहीं दे रहा है, मोदी जी अपने पास से नहीं दे रहे, अब आपसे लूटी जाएगी ये जो 1 रुपए यूनिट, 1.5 रुपए यूनिट महंगी बिजली दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, 25 साल के लिए महाराष्ट्र की जनता को लूटने की खुली छूट अडानी को नरेंद्र मोदी जी, शिंदे जी कैसे मिल गई? देवेंद्र फडणवीस जी, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को देना पड़ेगा आपको। और एक मोटे मोटे अनुमान के तहत अगर ये 6600 मेगावाट की बिजली सप्लाई 4 रुपए यूनिट के दर से अगले 25 साल तक चलती रहे तो करीब करीब महाराष्ट्र की जनता को 1 लाख करोड़ रुपए का चूना लगेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की लूट महाराष्ट्र की जनता से की जाएगी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के रानिया में पार्टी के उम्मीदवार हरपिंदर सिंह की हिमायत में रोड शो किया। जुलूस में उमड़े अवामी सैलाब से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो मेरे हौसले तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो भूल गए थे कि मैं हरियाणा का छोरा हूँ। वो किसी के भी हौसले तोड़ सकते हैं, लेकिन हरियाणा वालों के नहीं। गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर एक बड़ा इंकशाफ पुलिस की तरफ से किया गया है।
सूरत में मुमकिन हादसे को टालने का क्रेडिट लेने वाले अफसरों को तोड़फोड़ की कोशिश के इल्ज़ाम में रेलवे के 3 मुलाजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरत में मुमकिन हादसे को टालने का क्रेडिट अपने सर लेने वाले 3 मुलाजमीन को तोड़फोड़ की कोशिश के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों और पुलिस की पूछताछ में पता चला कि रेलवे मुलाजमीन ने ही ट्रेन की पटरियों से छेड़छाड़ की थी ताकि उन्हें नौकरी में प्रमोशन मिल सके। आपको पता है 21 तारीख की सुबह 5 बजे के बाद कीम कोसंबा रेलवे ट्रैक के बीच में ट्रेन को डिरेल करने की जो कोशिश हुई थी उसमें फिश पेडल और एआरसी पैडलॉक निकाल के 1.5 किलोमीटर जितने एरिया में निकाले गए थे। तुरंत आरपीएफ, जीआरपी, गुजरात पुलिस की सीनियर ऑफिसर, सूरत रूरल एसपी, रेंज आईजी सर सब वहां पहुंच के बीएनएस और रेलवे एक्ट के रिलेवेंट सेक्शन में ऑफेंस रजिस्टर करके 16 जितनी कूल टीमें पुलिस ने बनाई थी। 150 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर और पुलिसमैन ने 5 किलोमीटर का एरिया लगातार 2 दिन तक सर्च किया था। ड्रोन का भी इसमें पुलिस ने यूज किया था। आसपास रहने वाले लोग, ट्रैक पर से आने जाने वाले लोग, ट्रैक पर नौकरी करने वाले लोग, उस समय कौन कौन सी ट्रेन थी, उसमें ट्रेन का जो है वो कौन चला रहा था, उन सब की डिटेल्स सबको पूछना कैसे ये वारदात हुई थी, ये सारी चीजें पुलिस ने की हैं। और इस बीच एनआईए और गुजरात एटीएस की टीम और अन्य एजेंसियों की टीम भी उनके मैंडेट के हिसाब से अपना इन्वेस्टिगेशन में जुड़ गई। अब पुलिस को पता चला कि ट्रैक पे काम करने वाले सुभाष, मनीष और शुभम 3 लोग थे। सुभाष 9 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, मनीष 1.5 साल से और शुभम जो है वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ट्रैक पे काम कर रहे हैं। और उस रात उनकी ट्रैक मेंटेनेंस की और पेट्रोलिंग की ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी। जो वीडियो बना के रिपोर्टिंग में भेजा गया था कि जिसमें फिश पेडल और पैडलॉक निकाले गए हैं, वो वीडियो सुभाष ने डिलीट कर दिया था अपने मोबाइल पे। ऐसी बात पुलिस को पता चली और पुलिस ने उसके रिसाइकल बिन से ये वीडियो रिकवर किया। तो वीडियो का टाइमिंग 4:57 और 56 सेकंड जितना आ रहा था। जो फरियाद है उसकी कंटेंट से मैं मैच नहीं कर रहा था। इस बीच मनीष के मोबाइल से भी उसी की रिसाइकल बिन से डिलीट किए हुए 3 और फोटो पुलिस को मिलते हैं, जिनका टाइमिंग भी 2:56, 57, 3:14 अर्ली मॉर्निंग का है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ध्यान पे आते ही पुलिस ने इंटेंस पूछपरछ करके सुभाष, मनीष और शुभम तीनों ने कन्फेस किया कि प्रसिद्धि के लिए और इनाम के लिए तथा जो नाइट पेट्रोलिंग चल रही है वो अभी बंद होने वाली है, तो वो थोड़ा नाइट पेट्रोलिंग ज्यादा चले ताकि इनको डे का ऑफ भी मिल पाए। इन 2 मोटिव के चलते इन्होंने ही खुद ये पैडलॉक और ये फिश प्लेट निकाला और फिर वापस लगाने के लिए 5:20 के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया था। जबकि ये पैडलॉक और फिश प्लेट निकाले हुए फोटोग्राफ जो हैं वो पुलिस को 3 बजे के करीब के भी मिले हैं। तो इस तरह से पुलिस ने ये डिटेक्ट किया है। और इनके साथ और कोई इसमें जुड़ा हुआ है नहीं, उसकी भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। और घटना से जुड़े हुए, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए और पब्लिक सेफ्टी से जुड़े हुए और भी जो सारे एंगल हैं उन सब पे भी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन तीनों को अरेस्ट करके पुलिस रिमांड लेके पूरा घटना का रिकंस्ट्रक्शन करके आगे की कार्रवाई करेगी। योजना बनाने का इनका इरादा कब से बना उसका पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। और क्लिप निकालने का अभी तक जो पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन आया है वो 3 बजे के आसपास से ही ये करके फिर इन्होंने साइड में रख दिया होगा। बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है, स्टेट के डीजीपीज के साथ, होम सेक्रेटरीज के साथ, एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है। किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये हमारा संकल्प है। साथियों, आप सब जानते हैं कि रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, जिस पे पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा था। तो गत 16 जुलाई 2024 को
कवच का 4.0 वर्जन यानी वर्जन 4.0 जैसे डेवलपमेंट होता है तो नए नए वर्जन्स आते हैं, तो कवच का वर्जन 4.0 फाइनल हुआ था, फ्रीज हुआ था, अप्रूव हुआ था, आरडीएसओ की तरफ से अप्रूवल हुआ था। उसका पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा आगे नागदा तक वो कंप्लीट हुआ है, तो आज उसका निरीक्षण करूँगा। और साथ ही साथ जो अपने जयपुर गांधीनगर स्टेशन में पहली जो रूफ प्लाज़ा बनी है, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्टेशन के विकास के लिए एक धारणा दी है जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके, और वो जोड़ने वाला माध्यम है रूफ प्लाज़ा। तो वो रूफ प्लाज़ा भी अभी बन गई है और ये देश में तीसरी या चौथी रूफ प्लाज़ा है, इसलिए उसका भी एक बार निरीक्षण ढंग से करूँगा। और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ बैठने का भी विचार। देखिए, बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है, स्टेट के डीजीपीज़ के साथ, होम सेक्रेटरीज़ के साथ, एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है। और किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये हमारा संकल्प है। और साथ ही साथ पूरा रेलवे प्रशासन इसमें पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रहा है। एक अलग टास्क फोर्स भी बनाने की बात चल रही है इस घटनाओं को रोकने के लिए। बहुत पूरे देश भर में रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवीज़न में, जोन में, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, तीनों के तीनों, और स्टेट की जो पुलिस है, उन सब के साथ मिल के इसमें काम कर रहे हैं। मगरबी बंगाल के अलीपुर द्वार डिवीज़न के न्यू मैनागुड़ी स्टेशन पर एक खाली मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेनों को मुतबादिल रूटों से भेजा गया ताकि गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर न हो। अलीपुर द्वार के डीआरएम समेत सीनियर अफसरों ने जाए हादसे पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा अमरीकी दौरा मुकम्मल हो गया है। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ द फ्यूचर और क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। इसके साथ ही अपने दौरे के दौरान उन्होंने कुछ दुतरफा मुलाकातें भी की। Meeting with the President of Palestine, the Prime Minister referred to India's historic support for Palestine in the United Nations, on the international stage, as also the consistent and sustained humanitarian support that India has provided to Palestine in the fields of health, education, capacity building, and others. He also expressed deep concern at the unfolding crisis in Gaza, where the situation remains complicated and tensions remain high, and reiterated once again that only a two-state solution can deliver sustainable peace in this area. The President of Palestine thanked the Prime Minister for the assistance that India had provided, including on the political issues, and hoped that India would continue to play its role for bringing peace in the region. Today, as I said, the Prime Minister had meetings with the President of Vietnam and the President of Ukraine. With the President of Vietnam, again, as you know, the President has also just very recently taken over as the General Secretary of the Communist Party of Vietnam. The Prime Minister congratulated him on his assumption of this new position. He also recalled the visit of the Vietnamese Prime Minister to India recently, the significance of the India-Vietnam strategic relationship. He expressed condolences for the recent devastation in Vietnam on account of Cyclone Yaji. General Secretary and President To Lam thanked Prime Minister for his good wishes, thanked him for the aid operation that India had launched under Operation Sadbhav recently to bring relief aid to Vietnam. Prime Minister also invited him
to visit India, an invitation which was accepted and will be worked on through other channels. Both sides remarked on the growing relationship, especially in the fields of defense and security, in energy, and of course cultural contact, which remains a very strong part of the relation. Once again that हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि फ़लस्तीन के सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के लिए हिंदुस्तान की तारीख़ी हिमायत का जिक्र किया। उन्होंने गज़ा के बहरान पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की। फ़लस्तीन के सदर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि हिंदुस्तान इस खित्ते में अमन लाने में अपना रोल अदा करता रहेगा। विक्रम मिस्री ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ भी मोदी की मुलाकात की तफसीलात बयान की। तो एक तरह से जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भी भेंट हुई है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी को ये कहने का अवसर मिला कि उन्होंने हमेशा शांति का प्रस्ताव लेके शांति के पथ पे आगे बढ़ने की बात की है। तो साफ बात है कि अगर शांति नहीं है तो एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्या युद्ध का अंत होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सब लोगों की जो कोशिश है वो इसी ओर केंद्रित है कि किसी तरह से युद्ध का अंत ढूंढा जाए। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो उनकी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत हुई उसमें उन्होंने उनसे बताया भी कि उनकी अलग अलग देशों के जो नेता हैं उनसे बातचीत हुई है और इस विषय पे बातचीत होती रहती है। और सबका मत यही है कि किसी न किसी तरह से हमको युद्ध विराम के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और इसी को लेके हमारी भी कोशिशें जारी हैं। चीन ने लबनान को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने लबनान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बो हबीब से कहा है कि चीन लबनान की सालमियत के दिफा और मुल्क की सलामती में उसकी हिमायत करता है। चीन ने इसराइल के हवाई हमलों की भी मजम्मत की। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।